Now we have discussed about addition of waves. Now I am going to start with YDSE, Young's double slit experiment. So YDSE was the first experiment which made everyone truly believe that there could be another possible branch of optics, that is wave optics. So before that, still experiments were carried out, but not to it didn't convince people so much that they were forced to believe that wave optics also could play a major role in this branch. So YDSE, it was carried out in 1801 by Young. So what Young did was that at first he did this experiment using sunlight in a dark room. So basically he allowed sun rays to fall on one door with only one hole open. So basically the sunlight acted as a point source, and then he kept two slits here so that this point source could pass through the slits, and then he observed the interference pattern on a white screen. So this is the final screen, and this is the double slit plane. And this is the point source. The sunlight is acting as a point source here. So this is the point source. So I am going to tell you about every aspect of this experiment, like why this experiment was carried out in this fashion, why it couldn't be more simplified, what will be the problems if if this experiment was simplified. So basically one immediate question the student will have in mind is that why this point source, eventually the light is passing through both the slits. So why not take just two different two different light sources and then perform interference with such kind of arrangement. So that this kind of arrangement is only valid here. The one which I told just now is not valid, because even how much ever we try to manipulate different sources of light, still there will be some changing phase difference with respect to time. That is, the sources will be incoherent. That is the so basically we use here the same source, and the same source is allowed to illuminate on this double slit plane so as to make this set of source coherent, so that we use a coherent source of light. If we don't use a coherent source of light, then suppose at this point if we check the intensity, if we measure the intensity, then the phase difference will come into play, and the phase difference will change with respect to time. So thereby no definite intensity pattern will be able to perceive. Suppose at one instant of time different intensity shows, high intensity shows, and at another instant of time in the same position different intensity will be shown. That's why we use coherent sources here. So we use coherent sources to use coherent source, such an arrangement is made. Now, so basically I am removing this plane. This was the door which was used by Young in his experiment. Now, so basically there is a point source, there is a double slit plane, and there is a screen. So now I am going to calculate, I am going to see what is the intensity at any general point P, and then we will generalize the result so that we can find the maxima or minima on this screen. So let us do it. Suppose this is the source S, and this is so this is the primary source here, and this slit plane, this acts as a secondary source. So let's name them S1, S2, and
let's name all the intersection points. Suppose this is O, this is P, and this is Q. This is a general point Q where we will calculate the intensity, where we will find the conditions where maxima or minima on the screen will occur. So at first, so what I taught you earlier in the earlier class in addition of waves and superposition of waves is that the path difference for maxima or minima to exist at a point, the path difference between of the sources matter. So for the path difference, let's join these points. So S1, we are interested in finding the path difference between S1Q and S2Q. So what will your path difference here? So the path difference equals to S2Q minus S1Q. So we are going to deal with this path difference by taking the difference of the squares between them. So we are interested in S2Q square minus S1Q square. So we can look at this in two ways, one as the difference between the squares and one as S2Q, A square minus B square equals to A minus B into A plus B. So S2Q minus S1Q into S2Q plus S1Q, and we are interested in finding S2Q minus S1Q. So S2Q whole square minus S1Q whole square. At first, let me tell you that let the distance between these two planes be capital D and the distance between the two slits be small d. So small d is the distance between the slits and capital D is the distance between the this plane and this plane. And another more assumption I am making is that for this experiment to go on successfully or to so that we can see good intensity pattern here, another remark is that capital D should be much greater than D. So this is the assumption, and another assumption is that suppose the size of the source slit be S, small s, and this distance be capital S. So another condition is small s by capital S should be less than lambda by d, where lambda is the wavelength of the light used and small d is the distance between these two slits. So let's come back to the path difference calculation. So S2Q whole square minus S1Q whole square equals to suppose मैं suppose PQ distance है x, यहाँ पे x कोई जनरल लेंथ हो सकता है, तो फिर हम लोग S2Q स्क्वायर माइनस S1Q स्क्वायर को x कैपिटल D और स्मॉल d के टर्म्स में निकालेंगे जो कि हमें पता है, और लैम्डा भी, क्योंकि लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड दैट इज फिक्स्ड. Suppose for blue light some definite value of lambda is there, for red light lambda fixed है, तो ऐसा lambda fixed है. तो S2Q का होल स्क्वायर क्या है? तो S2Q होल स्क्वायर है S2 सपोज दिस इज P1, सो S2P1 स्क्वायर प्लस P1Q स्क्वायर. तो अब S2P1 क्या है? D, तो D स्क्वायर प्लस x प्लस d बाई टू होल स्क्वायर, x प्लस d बाई टू होल स्क्वायर. क्योंकि ये d हो गया और हमने सिमेट्रिकली कंसीडर किया था, तो ये d बाई टू, ये d बाई टू, तो ये d बाई टू एक्स प्लस d बाई टू d स्क्वायर प्लस x प्लस d बाई टू होल स्क्वायर माइनस S1Q होल स्क्वायर. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट P2 ले, तो फिर ये QP2 हो जाएगा x माइनस डी बाई टू, तो d प्लस एक्स माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर. सो माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर. तो ये हो गया S1Q का होल स्क्वायर. तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे बचेगा x इंटू डी, यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ माइनस एक्स इंटू डी, तो बचेगा 2 इंटू एक्स डी, 2xd. तो S2Q स्क्वायर माइनस S1Q स्क्वायर हो गया 2xd.
अब हम कैलकुलेट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे S2Q माइनस S1Q क्या है। तो फिर लेट्स डू इट। तो हमने देखा था S2Q स्क्वायर माइनस S1Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2XD। तो अब S2Q माइनस S1Q इक्वल्स टू S2Q होल स्क्वायर माइनस S1Q होल स्क्वायर बाई S2Q प्लस S1Q इक्वल्स टू S2Q होल स्क्वायर माइनस S1Q स्क्वायर बाई S2Q प्लस S1Q, क्योंकि a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। अब ये न्यूमरेटर ऑलरेडी पता है हमें कि इज इक्वल टू 2XD है, और बाई अब S2Q प्लस S1Q को भी हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि कैपिटल D इज मच ग्रेटर देन स्मॉल d। तो फिर और ये स्मॉल d और ये x ये सब कंपेरेबल है, तो फिर ये जो कैपिटल D है ये स्मॉल d और x के हिसाब से बहुत बड़ा है। तो फिर हम S2Q और S1Q को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कैपिटल D। तो फिर S2Q को अगर हम कैपिटल D लिखे और S1Q को भी हम कैपिटल D लिखे तो फिर डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 इंटू डी। तो फिर डिनोमिनेटर होगा 2D। अब 2 कैंसिल हो गया तो हम लिख सकते हैं XD बाई कैपिटल D। तो ये हो गया आपका S2Q माइनस S1Q, और यही है आपका पार्ट डिफरेंस। तो हमें मिल गया पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू XD बाई D। सो S2Q माइनस S1Q इक्वल्स टू XD बाई D। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि हमने दो एजम्पशन लिया। एक एजम्पशन ये है कि कैपिटल D इज ग्रेटर देन D, मतलब ये जो डिस्टेंस बिटवीन द इमेज डिस्टेंस बिटवीन द दिस प्लेन, मतलब जो इमेज प्लेन जहाँ पे हम फाइनल इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, सो इंटेंसिटी प्लेन एंड द डबल स्लिट प्लेन, ये डिस्टेंस D जो कि मच ग्रेटर देन ये स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, और स्मॉल s बाई कैपिटल S इज लेस देन लैम्डा बाई d। और स्मॉल s क्या है? स्मॉल s है साइज ऑफ द स्लिट, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, स्मॉल s है साइज ऑफ स्लिट, और कैपिटल S है ये डिस्टेंस बिटवीन दिस सोर्स स्लिट एंड डबल स्लिट प्लेन। तो ये हो गया कैपिटल S। तो इक्वेशन है स्मॉल s बाई कैपिटल S इज लेस देन लैम्डा बाई d। तो ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुए तभी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छे से दिखेगा। तो अब हम देखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा का रिलेशन के लिए x का क्या वैल्यू होना चाहिए। सोर्स, मेन सोर्स, प्राइमरी सोर्स, और ये आपका डबल स्लिट प्लेन, और ये आपका इंटेंसिटी प्लेन। सपोज ये है S1, ये है S2, और ये जनरल पॉइंट Q, ये सपोज P। तो फिर हम इन्हें ज्वाइन करते हैं। अब हमने देखा था कि S2Q और S1Q में जो पार्ट डिफरेंस है वो है XD बाई D, x इंटू D बाई D। तो ये पार्ट डिफरेंस हो गया। अब मैंने पिछले क्लास में बोला था एडिशन ऑफ वेव्स में कि अगर पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू n लैम्डा हो, वेयर n इज एन इंटीजर, n कैन बी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एक्सेट्रा, तो मैक्सिमा का कंडीशन होगा। और अगर उसका वैल्यू 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा हो, मतलब n प्लस हाफ इंटू लैम्डा हो, तो वो मिनिमा का पोजिशन होगा। तो हम लिखते हैं फॉर मैक्सिमा XD बाई D शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा, क्योंकि XD बाई D है आपका पार्ट डिफरेंस, तो ये होना चाहिए n लैम्डा फॉर मैक्सिमा टू अगर, मतलब अगर इस x डिस्टेंस पे अगर Q पे हमें मैक्सिमा चाहिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फिर अभी आप x फाइंड आउट करते हैं, तो x यहाँ से मिल गया n लैम्डा D बाई स्मॉल d। तो ये आपका x हो गया, मतलब
इस x के डिस्टेंस पे, मतलब सब अगर q x डिस्टेंस पे है और x का वैल्यू ये हो तो फिर हमें वहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पे n क्या हो सकता है, n इक्वल्स टू 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, ±3 हो सकता है, एक्सेट्रा। तो n यहाँ पे इंटीजर्स है। तो अगर हम n इज इक्वल टू 0 प्लेस करते हैं तो फिर n इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ से मिलेगा हमें x इक्वल्स टू 0। तो ये आपका मेन इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन से हमें मिला n इज इक्वल टू 0 से x इक्वल्स टू 0, मतलब एग्जैक्टली पॉइंट P, मतलब एग्जैक्टली पॉइंट P में हमें एक मैक्सिमा मिलेगा। और क्योंकि ये सेंट्रल पे है, क्योंकि ये सेंटर पे है, P इज द सेंट्रल पॉइंट, सो वी कॉल इट सेंट्रल मैक्सिमा। सो n इक्वल्स टू 0 represents central maximum. Similarly, n equals to 1 मतलब x equals to lambda into capital D by small d, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। Similarly 2 lambda d by d, 3 lambda d by d, और अगर n को नेगेटिव प्लेस करें तो फिर माइनस लैम्डा डी बाई डी, -2 लैम्डा डी बाई डी, -3 लैम्डा डी बाई डी, ये सब पॉइंट्स में यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। अब हम देखते हैं मिनिमा कहाँ मिलता है। तो मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा हम लोग प्लेस करेंगे एक्स डी बाई डी इक्वल्स टू n+12 इंटू लैम्डा। तो यहां से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू n+12 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो ये हो गया मिनिमा का पॉइंट्स। तो फिर अगर n इक्वल्स टू 0 प्लेस करते हैं तो फिर x इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई 2d मिलेगा। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के एकदम बीच का पॉइंट है, वहाँ पे हमें मिनिमम मिलेगा। सिमिलरली फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में 3/2 लैम्डा डी बाई डी होगा, वो आपका सेकंड मिनिमा होगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे। तो सिनेरियो, टोटल सिनेरियो कैसा है? टोटल सिनेरियो है कि सपोज P है सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमा, उसके ऊपर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, ऐसा चलता रहेगा। मैं आपको फिगर में आपको दिखाता हूँ। इस फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं स्क्रीन को। सपोज ये है आपका P, ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, n इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे n नहीं लिखते क्योंकि n को हम वोट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमने डिस्क्राइब किया था। तो P सेंट्रल मैक्सिमा, और यहाँ पे है x इक्वल टू 0, हम इसको x इक्वल 0 मान रहे हैं। तो सब यहाँ पे है सपोज है x इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, यहाँ पे सपोज है x इक्वल्स टू 2 लैम्डा डी बाई डी। सिमिलरली यहाँ पे सपोज सिमेट्री, अगर सिमेट्री सोचे तो x इक्वल्स टू माइनस लैम्डा डी बाई डी, यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 लैम्डा डी बाई डी। तो ये जो 5 पॉइंट्स है इनमें मैक्सिमा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू -1 और n इक्वल्स टू -2 है। उस इक्वेशन में जहाँ पे हमने लिया था कि पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू n लैम्डा, तो फिर वो मैक्सिमा का कंडीशन है। तो वहाँ पे अगर x फाइंड आउट करें तो ये सब आएगा। तो ये सारे मैक्सिमा है। तो सपोज इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा एंड सो ऑन। तो फिर यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो फिर अगर मैं इंटेंसिटी को लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करता हूँ, सपोज इसमें इतना इंटेंसिटी आ रहा है, तो सिमिलरली ये भी मैक्सिमा है, तो यहाँ पे भी सपोज इतना इंटेंसिटी आ रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा भी इतना इंटेंसिटी। तो फिर ये हो गया इस पॉइंट का इंटेंसिटी, ये हो गया इस पॉइंट का इंटेंसिटी, ये हो गया इस पॉइंट का इंटेंसिटी। अब मिनिमा का क्या था? मिनिमा का पॉइंट था n लैम्डा डी बाई 2d, n+12 इंटू लैम्डा डी बाई डी। अगर n इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो लैम्डा डी बाई 2d, लैम्डा डी बाई 2d कुछ यहाँ इस पॉइंट में रहेगा, x इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई 2d। सिमिलरली n इक्वल्स टू अगर 1 पुट करते हैं, मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार। तो मैक्सिमा के लिए था
मैक्सिमा के लिए था n लैम्डा डी बाई डी, और मिनिमा के लिए था n प्लस हाफ लैम्डा डी बाई डी। तो फिर यहाँ पे अगर n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो लैम्डा डी बाई डी, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 लैम्डा डी बाई डी। तो ये सारे मैक्सिमा हो गया, ये और ये। और सिमिलरली अगर मिनिमा की इक्वेशन में n का वैल्यू पुट करे तो n इज इक्वल टू 0 पुट करे तो लैम्डा डी बाई टू डी, लैम्डा डी बाई टू डी। अगर n इक्वल्स टू 1 पुट करे तो 3 लैम्डा डी बाई टू डी। तो यहाँ पे मिलेगा x इक्वल्स टू 3 लैम्डा डी बाई टू डी। तो ये मिनिमा हो गया। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिखता हूँ ये मैक्सिमा कैपिटल M, ये भी कैपिटल M, ये भी कैपिटल M, यहाँ पे स्मॉल m, यहाँ पे भी स्मॉल m, यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू माइनस लैम्डा डी बाई टू डी। तो यहाँ पे भी मिनिमा स्मॉल m, यहाँ पे मैक्सिमा, सिमिलरली यहाँ पे आपका आएगा मिनिमा, यहाँ पे मैक्सिमा। और यहाँ पे मिनिमा भी ऐसा है कि पूरा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि मैं पिछले बार दिखाया था आपका इंटेंसिटी या तो 4 टाइम्स हो रहा था, 4 टाइम्स ऑफ द सिंगल इंटेंसिटी, या फिर 0 पिछले क्लास में अगर आपको याद है तो फिर यहाँ का इंटेंसिटी आप पूरा 0 मिलेगा, पूरा 0। जैसे कि यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी था जब मैक्सिमा था, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम मतलब इस केस में थोड़ा 0 इंटेंसिटी मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे भी 0 इंटेंसिटी, यहाँ पे भी 0 इंटेंसिटी। तो फिर अगर हम कनेक्ट करें और बीच में भी अगर x ले तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, तो अगर इनको ट्रेस करते हैं तो ऐसा कुछ मिलेगा, कर्व ऐसा मिलेगा। तो ऐसा कुछ कर्व मिलेगा। तो फिर ये आपका हो गया इंटेंसिटी कर्व। तो अगर हम प्लॉट करें इंटेंसिटी, सपोज ये है I नॉट, वेयर I नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, उसका वैल्यू ये इतना है, तो ये मैक्सिमम मिलेगा, और मिनिमम में आपका इंटेंसिटी का वैल्यू 0 होगा। तो फिर ये दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटरफेरेंस, दैट ऑल द इंटेंसिटीज, फर्स्ट ऑर्डर इंटेंसिटी, सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी, सभी का मैक्सिमा का इंटेंसिटी सेम है, जो कि हम बाद में डिफ्रैक्शन देखेंगे। डिफ्रैक्शन भी एक इफेक्ट है, वो इस केस में इंटरफेरेंस के साथ डिफर करेगा। तो मैं आपको बाद में डिफ्रैक्शन के बारे में बताता हूँ। तो ये हो गया आपका इंटरफेरेंस। तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों था जो वेव नेचर ऑफ लाइट को डेमोन्स्ट्रेट करता है? क्योंकि यहाँ पे दो सोर्स, मतलब अगर जब ये सोर्स यहाँ पे इल्यूमिनेट करता है ये दो स्लिट्स को, तो आपके पास दो सोर्स हो गया, दो सोर्स ऑफ लाइट। सपोज इस स्क्रीन पे जब इल्यूमिनेट करता है तो फिर ये दो सोर्स ऐड करके ऐसा भी पॉइंट्स निकाल रहे हैं जिनका इंटेंसिटी 0 हो, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो यही हो गया आपका वेव नेचर ऑफ लाइट। अगर ये पार्टिकल नेचर होता, अगर दो पार्टिकल को आप ऐड करेंगे तो कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, ऐड होगा, लेकिन ये सबट्रैक्ट हो रहा है, मतलब एक का इफेक्ट दूसरा कैंसिल कर रहा है। इसीलिए ये वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। इसीलिए ये एक पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि कन्विंस किया लोगों को कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी एक लाइट का एस्पेक्ट है। तो फिर ये आपका हो गया इंटरफेरेंस। अब मैं कुछ इसमें क्वेश्चंस कर रहा हूँ आपको कि अगर डी स्मॉल डी को इंक्रीज करेंगे, कैपिटल डी को चेंज करेंगे, क्या इफेक्ट आएगा फ्रिंज पे। और उससे पहले और एक दैट इज समथिंग मोर, फ्रिंज वेट। फ्रिंज वेट क्या है? So fringe weight is the distance between two consecutive
मैक्सिमा और मिनिमा in the intensity plane. मतलब सपोज ये आपका इंटेंसिटी प्लेन है, ये आपका डबल स्लिट प्लेन है और ये आपका सोर्स है। तो सपोज ये एक मैक्सिमा है और ये कंसेक्यूटिव मैक्सिमा है। सपोज ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है। तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं फ्रिंज वेट। तो ये लेंथ हो गया आपका फ्रिंज वेट। तो फिर अगर देखते हैं कि फ्रिंज वेट फिक्स्ड है या फिर दो ऑर्डर्स में चेंज होता है। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग देखेंगे कि n=0 और n=1 के बीच में जो फ्रिंज वेट है वो इज दैट सेम एज n=1 और n=2 के बीच में। तो हम देखते हैं, तो n=0 के लिए आपका x हो गया 0 क्योंकि n लैम्डा डी बाई डी। सिमिलरली n=1 के लिए आपका हो गया x = 1 लैम्डा डी बाई डी, मतलब सिर्फ लैम्डा डी बाई डी। सिमिलरली n=2 के लिए हो गया x = 2 लैम्डा डी बाई डी। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है कैपिटल लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई डी। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है 2 - 1 लैम्डा डी बाई डी। तो फिर हम देखते हैं कि फ्रिंज विड्थ बिटवीन n=0 एंड n=1 ऑर्डर मैक्सिमा और फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के मैक्सिमा के बीच जो आपका फ्रिंज विड्थ है वो सेम है। तो फिर हम फ्रिंज विड्थ को ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी दो मैक्सिमा के अंदर या फिर कोई भी दो मिनिमा के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम फ्रिंज विड्थ कह सकते हैं। तो आपका फ्रिंज विड्थ हो गया लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो फिर फ्रिंज विड्थ जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये हो गया आपका फ्रिंज विड्थ। और अगर हम कुछ जनरल एक्सप्रेशन भी ले, सपोज nth ऑर्डर के लिए मैक्सिमा हो गया n लैम्डा डी बाई डी, हो गया n लैम्डा डी बाई डी। और n+1 ऑर्डर के लिए हम लेंगे n+1 इंटू लैम्डा डी बाई डी। अब इन दोनों को भी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n कट जाएगा, लैम्डा डी बाई डी बचेगा। तो ये हो गया आपका फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ हो गया लैम्डा डी बाई डी। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पैरामीटर्स को अगर चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, देखते हैं। पहले मैं सोर्स स्लिट से शुरू करता हूँ। सोर्स स्लिट मतलब इनिशियली जो डोर में एक होल किया था हमने, जो जिसके थ्रू सनलाइट एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा था, उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो फिर मैं फिगर बना देता हूँ पहले। ये हो गया आपका सोर्स, ये हो गया आपका डबल स्लिट प्लेन और ये हो गया आपका इंटेंसिटी पैटर्न, इंटेंसिटी प्लेन। तो इस सोर्स स्लिट का ये हो गया सोर्स, इसका सपोज साइज है स्मॉल एस और ये डिस्टेंस हो गया कैपिटल एस। तो हम देखते हैं अगर हम इस साइज को हम बड़ा करते हैं या फिर छोटा करते हैं। सपोज हम साइज को बड़ा करते हैं। सपोज साइज ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड। तो फिर जो मैंने इनिशियल कंडीशंस दिया था उसमें मैंने कहा था कि स्मॉल एस बाई कैपिटल एस का जो रेशियो है वो लेस देन लैम्डा बाई डी होना चाहिए, लैम्डा बाई स्मॉल डी होना चाहिए, तभी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। मतलब कि स्मॉल एस बाई कैपिटल एस शुड बी लेस देन लैम्डा बाई डी। अब यहाँ पे मैं सोर्स स्लिट का साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब स्मॉल एस को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब ये रेशियो इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर हम इस एस को इंक्रीज करते ही जाएंगे तो ये रेशियो एक टाइम पे ऐसा होगा कि लैम्डा बाई डी से ग्रेटर होगा और तब हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा ही नहीं। मतलब इतना ब्लर हो जाएगा इंटेंसिटी पैटर्न कि हमें दिखेगा ही नहीं। मतलब अगर स्मॉल एस को हम बढ़ा रहे तो फिर इंटेंसिटी पैटर्न और ब्लर होते जाएगा, मतलब लेस शार्प होगा। तो फिर इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट इंटेंसिटी पैटर्न gets
लेस एंड लेस शार्प, तो ये इफेक्ट होगा। अब सिमिलरली अगर हम कैपिटल एस को भी स्मॉल छोटा करें, वी मेक स्मॉल, तो फिर क्या इफेक्ट आएगा? तो ये हो गया आपका स्मॉल एस, और अब हम कैपिटल एस को इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल एस को हम डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब सेम इफेक्ट, क्योंकि हम कैपिटल एस को अगर हम छोटा करेंगे, मतलब अगर हम सोर्स को और पास लाएंगे, डबल स्लिट प्लेन के और पास लाएंगे, तो फिर भी यही इफेक्ट आएगा कि ये रेशियो जो है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर कम हो रहा है तो पूरा फ्रैक्शन बढ़ेगा, और सिमिलरली अगर एक पॉइंट पे ऐसा हो गया कि लैम्डा बाई डी से अगर ज़्यादा हो गया, तो फिर इंटेंसिटी पैटर्न फिर से ब्लर, पूरा ब्लर दिखाई देगा, और सिमिलरली धीरे धीरे करके अगर हम इसको कमाते जाएंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा ब्लर होते रहेगा, तो फिर सेम इफेक्ट, इंटेंसिटी पैटर्न गेट्स लेस एंड लेस शार्प। तो ये हो गया अगर आप सोर्स से कुछ छेड़छाड़ करते हो। अब हम देखते हैं कि इनका डिस्टेंस अगर कम कराते हैं या फिर ये डिस्टेंस चेंज करते तो क्या इफेक्ट होगा। देखते हैं कि अगर डी को छोटा करते हैं, डी मतलब ये डिस्टेंस डी, तो डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, और कैपिटल डी ये डिस्टेंस, तो ये मैं और लिख नहीं रहा हूँ, और हमने एक अप्रोक्सीमेशन किया था कि कैपिटल डी इज मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, ये हो गया। तो अब हम डी को छोटा कर रहे हैं, मतलब इस डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स को हम छोटा कर रहे हैं, तो फिर फ्रिंज विड्थ में क्या असर आएगा? तो फ्रिंज विड्थ हमने देखा था कि लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, मतलब अगर हम डी को छोटा करते हैं तो फिर फ्रिंज विड्थ और बढ़ेगा, मतलब n इक्वल्स टू 0, सपोज मैं 0 और 1 को कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब 0 ऑर्डर मैक्सिमा और फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस और ऊपर की तरह शिफ्ट होगा, सो द फ्रिंजेस विल शिफ्ट अपवर्ड्स, फ्रिंजेस विल शिफ्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, और फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा। सो फिर तो फ्रिंज विड्थ increases and fringes tend to move apart from each other. तो ये इफेक्ट हो गया अगर हम स्मॉल डी को कम कराते या बढ़ाते। और एक चीज़ है जो यहाँ वो भी यहाँ पे वेरी करेगा, वो है एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस। सपोज वो है थीटा, मतलब सपोज ये n इक्वल्स टू 0 था और ये n इक्वल्स टू 1 और ये दोनों मैक्सिमा है, तो फिर ये हो गया आपको एंगुलर सेपरेशन, मतलब ये दो जो ब्राइट फ्रिंजेस है वो कितना एंगल से सेपरेटेड है, वो इस केस में थीटा है, तो वो हम tan थीटा के हिसाब से मेजर करते हैं, तो वो हो गया आपका tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू ये हो गया आपका बीटा बाई ये डिस्टेंस मतलब d, और बीटा का है बीटा का इक्वेशन है लैम्डा डी बाई डी, तो बीटा बाई डी हो गया लैम्डा बाई डी। सो एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। तो अगर आप d को अगर आप छोटा करते हैं तो एंगुलर सेपरेशन भी बढ़ेगा, और ये ऑब्वियस है क्योंकि अगर ये यहाँ पे रह रहा है और ये और थोड़ा ऊपर जा रहा है तो थीटा बढ़ेगा, मतलब एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस विल आल्सो इंक्रीज। तो ये सब इफेक्ट हो गया अगर आप d को छोटा करते हैं। सिमिलरली अगर आप कैपिटल D को बड़ा करते हैं या फिर कैपिटल D को छोटा करते हैं, सपोज यहाँ पे कैपिटल D को छोटा करते हैं, ये आपका थर्ड केस हो गया। सपोज हम कैपिटल D को छोटा करते हैं, तो फिर
पहली बार तो एंगुलर सेपरेशन में कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये डी के इंडिपेंडेंट है। सो एंगुलर सेपरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो आपका एंगल है, अगर आप सपोज डी को कमा रहे तो फिर जो एंगल है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर आप इस स्क्रीन को यहाँ पे ला रहे हैं फिर भी एंगल कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब फ्रिंज विड्थ जो है वो आपका कमेगा। तो ये आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। तो यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा आपको कि अगर कैपिटल डी आपका छोटा हो तो बीटा आपका छोटा हो जाएगा। तो ये सारे आप दो इक्वेशन से आप सब कुछ को टैकल कर सकते हैं, सब कुछ प्रॉब्लम्स को, कि अगर आप कैपिटल डी को चेंज करते हैं या फिर स्मॉल डी को चेंज करते हैं या फिर आप ऐसा एक सोर्स लेते हैं जिसका लैम्डा इनिशियल लैम्डा से कम हो, जैसे आप ब्लू सोर्स की जगह ग्रीन सोर्स लेते हैं, तो फिर ये सब में बीटा चेंज होगा, कुछ केस में एंगुलर सेपरेशन चेंज होगा, कुछ में कांस्टेंट रहेगा। तो ये सब आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो फिर आपको बस मेनली ध्यान देना है ये फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस और टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस, और आपका एंगुलर सेपरेशन लैम्डा बाई स्मॉल डी। और तो इससे आप सब प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं।